بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستوں، میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے اہم معروضی سوالات و جوابات۔ ساتھیوں، آج کی اس کلاس میں ہم یونٹ 6 یعنی ناول اور افسانے سے متعلق سوالات و جوابات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ذیل میں چند بیانات درج ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے، پنڈت رتن ناتھ سرشار کو پہلا ناول نگار اور ان کے ناول میرات العروس کو پہلا ناول تسلیم کیا جاتا ہے۔ بی میں دیا گیا ناول میں شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی کہانی اور ایک ہی پلاٹ ہوتا ہے۔ سی میں دیا گیا دوستو، ناول میں کردار بھی ابتدا سے آخر تک ایک ہی ہوتے ہیں۔ اور ڈی میں ہے، ناول میں مافوق الفطرت عناصر کی بہتات ہوتی ہے۔ اور ای میں دیا گیا، ناول میں حقیقی اور واقعی حالات پیش کیے جاتے ہیں۔ جی دوستو، تو میں امید کرتا ہوں آپ نے صحیح جواب تک رسائی کر لی ہوں گی۔ تو اس سوال کا جواب میں بتا دیتا ہوں۔ صحیح جواب ہو جائے گا دوستو دوسرا اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا دوستو بی، سی اور ای۔ ناول میں شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی کہانی اور ایک ہی پلاٹ ہوتے ہیں، یہ بات درست ہے دوستو۔ اور ناول میں کردار بھی ابتدا سے آخر تک ایک ہی ہوتے ہیں، اور ناول میں حقیقی اور واقعی حالات پیش کیے جاتے ہیں۔ یہاں دیا گیا ہے، ناول میں مافوق الفطرت عناصر کی بہتات ہوتی ہے۔ مافوق الفطرت عناصر داستان کی خصوصیت ہے، ضرور یاد رکھیے گا، مافوق الفطرت عناصر جو ہے داستان کی خصوصیت ہے، نہ کہ ناول کی۔ تو اس اعتبار سے یہاں ڈی ہمارا غلط ہو جائے گا۔ اور پنڈت رتن ناتھ سرشار اردو کے پہلے ناول نگار نہیں ہے، بلکہ ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہے اور ان کا میرات العروس اردو کا پہلا ناول تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارا اے بھی غلط ہو جائے گا، بی، سی، ای رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں چند ناول نگاروں کے نام اور ان کے سن پیدائش درج ہیں، نام کے اعتبار سے سن پیدائش شامل کیجیے۔ جی دوستو، تو ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش 1830 عیسوی کو یہ ہے بجنور میں، اور پنڈت رتن ناتھ سرشار کی پیدائش 1846 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ عبدالحلیم شرر صاحب کی پیدائش 1860 عیسوی کو یہ ہے لکھنؤ میں۔ عبدالحلیم شرر صاحب کی پیدائش 1860 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ اور مرزا ہادی رسوا صاحب کی پیدائش 1858 عیسوی کو یہ ہے لکھنؤ ہوئی میں۔ اور منشی پریم چند کی پیدائش بنارس میں 1880 عیسوی کو یہ ہے۔ اور عصمت چغتائی کی پیدائش اگست 1915 عیسوی کو یہ ہے۔ تو اس اعتبار سے دوستو ہمارا رائٹ آپشن ہو جائے گا تیسرا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر تیسرا ہے دوستو، ذیل میں جائے پیدائش کے اعتبار سے دو زمرے صحیح ہیں، دو صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی، تو جائے پیدائش کے اعتبار سے دو صحیح زمرہ ہمارا ہو جائے گا دوستو اے اور بی۔ عصمت چغتائی کی پیدائش جو ہے دوستو اگست عبدالحلیم شرر ہے، عصمت چغتائی یہاں پہلے اے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تو عبدالحلیم شرر صاحب کی پیدائش 1860 عیسوی کو ہوئی ہے، اور پنڈت رتن ناتھ سرشار کی پیدائش 1846 عیسوی کو ہوئی ہے۔ مرزا ہادی رسوا کی پیدائش 1858 عیسوی کو یہ ہے، اور شوکت صدیقی صاحب کی پیدائش دوستو 1923 عیسوی کو یہ ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارا پہلا رائٹ آپشن ہو جائے گا 1860 عبدالحلیم صاحب، رتن ناتھ سرشار 1846، ہادی رسوا 1858 اور شوکت صدیقی 1923۔ عصمت چغتائی کی پیدائش اگست 1915 عیسوی کو یہ دوستو،
اور جیلانی بانو کی پیدائش 1936 عیسوی کو ہوئی ہے، اور آل احمد سرور کی 1911 عیسوی کو ہوئی ہے۔ آل احمد سرور کی 1911، تو یہ تو گڑبڑ ہو جائے گا نا، پہلے آل احمد سرور ہوگا، پھر اس کے بعد سے جو ہے پہلے آل احمد سرور کو ہونا چاہیے تھا، پھر جیلانی بانو کو ہونا چاہیے تھا، یہاں گڑبڑ ہے۔ اچھا معاف کیجیے گا، یہاں جائے پیدائش کے اعتبار سے نہیں پوچھا گیا دوستوں، سوری پیدائش سال پیدائش نہیں پوچھا گیا، سوری معاف کیجیے گا، جائے پیدائش پوچھا گیا۔ دیکھیے جلد بازی میں جو ہے یہاں مسٹیک ہو رہا تھا، جائے پیدائش کہاں ان کی پیدائش ہوئی ہے وہ پوچھا گیا ہے، بلکہ یہاں جو ہے جائے پیدائش پوچھا گیا، نہ کہ سال پیدائش دی۔ تو عبدالحلیم شاعر، پنڈت رتن ناصر سر، ہادی رسوا اور شوکت صدیقی، ان سبھی کی پیدائش جو ہے دوستوں لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں ہمارا اے رائٹ آپشن ہو جائے گا دوستوں۔ اور یہاں اس میں چغتائی، جیلانی بانو، آل احمد سرور، شوکت علی خان، عرفان صدیقی، بی والا جو زمرہ ہے وہ بدایوں والے لوگ ہیں، یہ بدایوں میں پیدا ہوئے ہیں دوستوں، اور یہ لکھنؤ والے ہیں، لکھنؤ والے ہیں، اور یہ بدایوں والے ہیں، اے اور بی والے جو زمرے ہیں۔ تو یہاں اس اعتبار سے ہمارا اے بی رائٹ آپشن ہوگا۔ اگر یہاں سی میں دیکھیے گا تو منشی پریم چند بنارس میں، راجندر سنگھ بیدی لاہور میں، تو اس اعتبار سے یہاں سی غلط۔ اقبال مجید صاحب کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا، اقبال مجید صاحب کی پیدائش مراد آباد میں ہوئی ہے، اور جیلانی بانو کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ تو بدایوں میں، تو اس اعتبار سے ہمارا ڈی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن پہلا ہوگا۔ چلیے جی دوستوں، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں چند بیانات دیے گئے ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح بیان کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے، فسانہ عجائب میں دلی کی مٹتی ہوئی تہذیب کی عکاسی کی گئی ہے۔ بی میں دیا گیا ہے، رتن ناصر سرسار نے اودھ اخبار میں ظرافت کے عنوان کے تحت فسانہ آزاد کو قسط وار لکھنا 1878 عیسوی میں شروع کیا تھا۔ اور سی میں دیا گیا ہے، علی عباس حسینی نے فسانہ آزاد کو اس کے پھیلاؤ اور بکھراؤ کے پیش نظر داستان اور ناول کی درمیانی کڑی کہا ہے۔ اور ڈی میں ہے، ناول فسانہ آزاد 4 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ اور ای میں دیا گیا ہے، ڈاکٹر احسن فاروقی کا ماننا ہے کہ مغرب میں ناول نگاری کی ابتدا ڈان ککھیٹو کے اثر سے ہوئی ہے۔ ڈان ککھیٹو ہوگا یہاں دوستو، ڈان ککھیٹو ہوگا کے اثر سے ہوئی ہے۔ سرشار پر اس کے اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرکار اردو ناول کی ابتدا بھی اسی کے فیض سے ہوئی۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب بتا دیجئے گا دوستو، رائٹ آپشن کیا ہوگا؟ اس سوال کا صحیح جواب مارک کر لیجئے گا، دوسرا ہو جائے گا بی، ڈی اور ای۔ بی، ڈی اور ای آپ کا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ رتن ناصر سرسار نے اودھ اخبار میں ظرافت کے عنوان کے تحت فسانہ آزاد ان کا ناول ہے، جو قسط وار لکھنؤ میں انہوں نے 1878 عیسوی میں لکھنا شروع کیا تھا۔ اور ناول فسانہ آزاد 4 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے، 1880 عیسوی میں شائع ہوا ہے یہ ناول۔ اور ڈاکٹر احسن فاروقی کا ماننا ہے کہ مغرب میں ناول نگاری کی ابتدا جو ہے وہ ڈان ککھیٹو کے اثر سے ہوئی ہے۔ سرشار پر اس کے اثر سے معلوم بھی ہوتا ہے کہ آخرکار اردو ناول کی ابتدا بھی اسی کے فیض سے ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارا بی، ڈی، ای رائٹ ہو جائے گا۔ یہاں دی گئی فسانہ عجائب میں دلی کی مٹتی ہوئی تہذیب کی عکاسی کی گئی، تو فسانہ عجائب میں فسانہ عجائب میں جو ہے دوستو دلی کی نہیں، فسانہ عجائب میں لکھنوی کی مٹتی ہوئی تہذیب کی عکاسی کی گئی ہے، دلی نہیں ہوگا لکھنؤ ہوگا، تو اس اعتبار سے ہمارا یہ غلط ہو جائے گا۔ اور یہاں بتایا جا رہا ہے علی عباس حسینی نے، تو علی عباس حسینی نے نہیں بلکہ گیان چند جین نے، گیان چند جین نے 1923 سے 2007 والے نے فسانہ آزاد کو پھیلاؤ اور بکھراؤ کے پیش نظر داستان اور ناول کی درمیانی کڑی کہا ہے، تو اس اعتبار سے ہمارا سی بھی غلط ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 5 ہے، ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو آزاد، حسن آرا، سحر آرا، ہمایوں فر، ذوالفقار علی خان اور ثریا بیگم،
इसके अलावा जो है मस्खरुद्दौला, कुदरत बेगम, मस्करी, शमीम, नाजो, पीर नाबालिग, बुलबुल बीमाग, ये सभी जो हैं पंडित रतन सरसार के नाविल फसाने आज़ाद के किरदार हैं। तो इस एतबार से हमारा सी डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। कलीम जो है ड्रामा अनारकली, कलीम सलीम जो है ड्रामा अनारकली का किरदार है। मिर्ज़ा दाहिर भी ड्रामा अनारकली किरदार है। इसके अलावा जो है ये फसाने आज़ाद के किरदार हैं। और यहाँ ए में भी देखिएगा तो यहाँ मिक्स दिया गया है। तो इस एतबार से हमारा ए बी गलत हो जाएगा, सी डी राइट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। झैल के बयानात को गौर से पढ़ने के बाद सही बयानात को निशानजद कीजिए। ए में दिया गया बयान नज़ीर अहमद के हम जमात मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलवी ज़का-उल्लाह हैं। बी में दिया गया नज़ीर अहमद को शमसुल उलमा का खिताब 1897 ईस्वी में मिला था। और सी में है नज़ीर अहमद का पहला नावल तौबतुन नसू है। डी में है नावल तौबतुन नसू एक इस्लाही नावल है। और ई में दिया गया नज़ीर अहमद ने कुल 10 नावल लिखे हैं। ये साथियों तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा साथियों पहला, ए और डी राइट ऑप्शन होगा। डिप्टी नज़ीर अहमद के हम जमात में मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलवी ज़का-उल्लाह आते हैं। नावल तौबतुन नसू एक इस्लाही नावल है जो दाखिल नसाब है और ये 1874 ईस्वी में मंजर आम पर आया है। नावल तौबतुन नसू ये 12 फसलों पर मुश्तमिल है। नावल तौबतुन नसू। डिप्टी नज़ीर अहमद को शमसुल उलमा का खिताब जो है बरतानवी हुकूमत ने नज़ीर अहमद को शमसुल उलमा का खिताब जो है 1897 ईस्वी में जो है अच्छा जो यहाँ बी में दिया गया है ये भी दुरुस्त है। नज़ीर अहमद को शमसुल उलमा का खिताब 1897 ईस्वी में मिला था। तो ये इसका राइट ऑप्शन नहीं होगा बल्कि ए बी डी हो जाएगा। और नज़ीर अहमद को पहला नावल तौबतुन नसू नहीं है, मिरातुल उरूस है। तो इस एतबार से यहाँ सी गलत होगा। तो इस सवाल का सही जवाब तीसरा हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और नज़ीर अहमद ने यहाँ दिया गया 10 नावल लिखे हैं। तो नज़ीर अहमद ने 10 नावल नहीं लिखे हैं बल्कि नज़ीर अहमद ने 7 नावल लिखे हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झैल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशानदही कीजिए। ए में दिया गया बयान है नावल तौबतुन नसू का नाम कुरान करीम से अख़ज़ किया गया है। और बी में है तौबतुन नसू का मरकज़ी ख़याल डेनियल डीफो के नावल दी फैमिली इंस्ट्रक्चर से माखूज़ है। सी में दिया गया बयान है नावल तौबतुन नसू की कहानी का महवर तरबियत औलाद है। और डी में है नावल तौबतुन नसू का मौजू लखनवी तहज़ीब और माशरत है। ई में है नावल तौबतुन नसू में नसू ख्वाब में हश्र के मैदान में अपने बड़े बेटों को देखता है। जी साथियों तो सवाल नंबर 7 का सही जवाब जो है मार्क कर लीजिएगा, पहला हो जाएगा ए बी सी। नावल तौबतुन नसू का नाम कुरान करीम से अख़ज़ किया है, ये बात दुरुस्त है। तौबतुन नसू का मरकज़ी ख़याल डेनियल डीफो के नावल दी फैमिली इंस्ट्रक्चर से माखूज़ है। और नावल तौबतुन नसू की कहानी का महवर तरबियत औलाद है। नावल तौबतुन नसू का मौजू लखनवी तहज़ीब नहीं है बल्कि इसकी तस्रीह यहाँ कर दी गई है, तरबियत औलाद। और नावल तौबतुन नसू ख्वाब में हश्र के मैदान में अपने बड़े बेटों को देखता है। तो ये गलत हो जाएगा बल्कि वो ख़ुद को देखता है। तो इस एतबार से यहाँ ई गलत हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा दोस्तों। नावल तौबतुन नसू में नसू ख्वाब में हश्र के मैदान में अपने बाप को देखता है, अपने बेटे को नहीं देखता है। दोस्तों याद रखिएगा, नसू जो है ख्वाब में हश्र के मैदान में अपने बाप को देखता है जिसके हाथ में उसका आमाल नामा है। तो इस एतबार से यहाँ हमारा ई गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नावल तौबतुन नसू कितने फसलों पर मुश्तमिल है दोस्तों? तो याद रखिएगा नावल तौबतुन नसू जो है वो टोटल 12 फसलों पर मुश्तमिल है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। नज़ीर अहमद के नावलों की ज़मानी एतबार से सही तरतीब बताना है। उनके जो 7 नावल हैं उनके ज़मानी तरतीब बता दीजिएगा। जैसा खाती तो पहला नावल इनका जो है इस सवाल का सही जवाब पहला हो जाएगा। इनका पहला नावल मिरातुल उरूस है जिसे नज़ीर अहमद ने
69 ईस्वी में तहरीर किया था। इनका दूसरा नावल बनातुन नाश है, जिसे इन्होंने 1872 ईस्वी में तहरीर किया। नावल तौबतुन नसू ये कब मंजर आम पर आया, तो 1874। फसानाए मुब्तला ये नावल 1885 ईस्वी में मंजर आम पर आया। इब्नुल वक्त 1888 ईस्वी में मंजर आम पर आया। अय्यामा 1891 ईस्वी में मंजर आम पर आया। और रोयाए सादिक़ा 1894 ईस्वी में मंजर आम पर आया। इसको ज़मानी तरतीब से याद रखने का तरीक़ा आप ऐसे कर लीजिएगा, जैसे मिरातुल उरूस का मीर ले लीजिए, बनातुन नाश का बना, तौबतुन नसू का तौ, फसाने मुब्तला का फसा, इब्नुल वक्त का इब्न और अय्यामा का अय्या और रोयाए सादिक़ा करो। देखिए अब ऐसे आप याद रख सकते हैं, मिर बना तू फसा इब्ने अय्यारो, मिर बना तू फसा इब्ने अय्यारो। आप ऐसे ज़मानी तरतीब याद रख सकते हैं। कभी कभी होता ये है कि डेट जो है हमारे जहन से निकल जाते हैं, तो आपको अगर ये ट्रिक आपको याद रहेगा तो ज़रूर आप जो है इस सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10 है दोस्तों, झेल में नज़ीर अहमद के नावल तौबतुन नसू के चंद किरदार और उनके आपसी रिश्ते दर्ज हैं। किरदारों के एतबार से रिश्तों को शामिल कीजिए। जी, तो किरदारों के एतबार से यहाँ रिश्ता शामिल करना है, दिया गया है। फ़हमीदा और नसू का आपस में बड़ी बेटी और बाप का रिश्ता होता है। फ़हमीदा और नसू आपस में इनका रिश्ता क्या होता है, तो फ़हमीदा बड़ी बेटी है और नसू बाप होता है। कलीम और नसूह, कलीम जो है इनका आपस में जो है दोस्तों, कलीम बड़ा बेटा होता है और नसू जो है बाप होता है, बड़ा बेटा और बाप। तो बी का हमारा तीसरा हो जाएगा। कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बैग, ये एक दूसरे के दोस्त होते हैं, एक दूसरे के दोस्त होते हैं दोस्तों। और नईमा और नसू, नईमा जो है बीवी है और नसू शौहर होता है। तो ए का फर्स्ट बी का 3, ए का फर्स्ट बी का 3, ए का फर्स्ट बी का 3 यहाँ होना चाहिए था 3 और यहाँ 2 होना चाहिए था। सी का जो दोस्तों कलीम और मिर्ज़ा दाहिर बैग दोस्त, सी का 4 होना चाहिए था दोस्तों। ए का ये जो है ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो लेकिन राइट यही है दोस्तों। फ़हमीदा और नसू बड़ी बेटी और बाप, कलीम और नसू ये कलीम और नसू बड़ा बेटा और बाप, कलीम और मिर्ज़ा दाहिर बैग ये दोस्त होते हैं। नईमा और नसू में बीवी और शौहर का रिश्ता होता है। यहाँ थोड़ा सा जो है ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किरदारों के एतबार से आपसी रिश्ते जोड़िए। जी साथियों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा। अलीम और नसू का इनका आपस में मंजिला बेटा और बाप अलीम जो है मंजिला बेटा है और नसू बाप होता है। सलीम और नसू का रिश्ता छोटा बेटा और बाप का है। नईमा और सालेहा इनका बड़ी बेटी और माँ का रिश्ता है। हमीदा और नसू का रिश्ता मंजिली बेटी और बाप। नईमा और सालेहा आपस में बहनें और सहेलियाँ होती हैं। तो इस एतबार से दूसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 12 देखिएगा साथियों। झेल के बयानात पर गौर कीजिए और सही बयानात को निशानदही कीजिए। पहला बयान है, अब्दुल हलीम शर ने माहनामा दिलगुदाज लखनऊ से 1887 ईस्वी में जारी किया था। बी में है, अब्दुल हलीम शर ने अपना माहनामा दिलगुदाज में तारीख़ी नावल 1899 ईस्वी में लिखवाना शुरू किया था। और सी में है, मलिकुल अज़ीज़ वर्जीना शरर और उर्दू का पहला तारीख़ी नावल है। और डी में है, अब्दुल हलीम शरर ने नावल फिरदौस बरी को लखनऊ में मुकम्मल किया था। और डी में दिया गया है, अब्दुल हलीम शर ने नावल फिरदौस बरी को हैदराबाद में मुकम्मल किया था। जी साथियों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, ए, सी और ई।
عبدالحلیم شرر نے ماہنامہ دلگداز لکھنؤ سے 1887 عیسوی میں جاری کیا تھا، درست ہے۔ عبدالحلیم شرر نے ماہنامہ اپنے دلگداز میں تاریخی ناول 1899 عیسوی میں نہیں بلکہ 1888 عیسوی میں جو ہے لکھنا شروع کیا تھا، تو اس اعتبار سے یہاں بھی غلط ہوگا۔ ملک العزیز ورجینہ شرر اردو کا عبدالحلیم شرر اور اردو کا پہلا تاریخی ناول تسلیم کیا جاتا ہے، یہ بات درست ہے۔ اور عبدالحلیم شرر نے ناول فردوس بری کو جو ہے حیدرآباد میں مکمل کیا تھا، نہ کہ لکھنؤ میں، تو اس اعتبار سے یہاں ڈی غلط ہو جائے گا دوستو۔ اے بی سی اور ای رائٹ آپشن پہلا ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے دوستو، ذیل کے بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے فردوس بری کا موضوع فرقہ باطنیہ کے عروج و زوال کی کہانی ہے، اور بی میں ہے فردوس بری کے ہیرو کا نام حسن بن صبا ہے اور ہیروئن کا نام بلغان خاتون ہے، اور سی میں ہے فردوس بری کے ہیرو کا نام شیخ علی وجودی ہے، ڈی میں ہے فردوس بری کے ہیرو کا نام حسین اور ہیروئن کا نام زمرد ہے، اور ای میں دیے گئے فردوس بری کا سب سے متحرک اور جاندار کردار شیخ علی وجودی ہے۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا اے، ڈی اور ای۔ فردوس بری کا موضوع فرقہ باطنیہ کے عروج و زوال کی کہانی ہے، یہ درست ہے، اور فردوس بری کے ہیرو کا نام حسین اور ہیروئن کا نام زمرد ہے، اور فردوس بری کا سب سے متحرک اور جاندار کردار شیخ علی وجودی ہے، تو اس اعتبار سے ہمارا اے ڈی رائٹ آپشن پہلا ہو جائے گا۔ فردوس بری کا ہیرو کا نام حسن بن صبا نہیں ہے، اس کی تصحیح یہاں کر دی گئی ہے، جو ہے ہیرو کا نام حسین ہے اور ہیروئن کا نام زمرد ہے، اور فردوس بری کے ہیرو کا نام شیخ علی وجودی نہیں ہے۔ چلیے جی، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے ناول فردوس بری کے ابواب کے عنوانات کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی کہ بی اور ڈی۔ پیاری زمرد تو کہاں گئی، پھر وہی عناصر، بلغان خاتون کا سفر، انتقام، یہ آخری ہے، پریوں کا غول پہلا ہے، اور اس کے علاوہ ملا اعلیٰ کا سفر، افشائے راز اور مردود ازلی۔ اے اور سی میں دیکھیے گا تو یہاں مکس دیا گیا ہے، توبی خان نہیں ہے اور نشاپور کا قتل نہیں ہے، تو اس اعتبار سے یہاں اے سی غلط ہوگا، بی ڈی رائٹ آپشن پہلا ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ناول فردوس بری میں کتنے ابواب ہیں، تو یاد رکھیے گا ناول فردوس بری میں ٹوٹل 9 ابواب ہیں، جو ابھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے۔ سوال نمبر 16 ہے دوستو، ذیل میں سے ناول نگاروں کے زمانی اعتبار سے کون سی ترتیب درست ہوگی، تو زمانی ترتیب سے ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو دوسرا۔ ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش آپ کو معلوم ہی ہوگا، 1830 عیسوی کو یہ ہے۔ رتن نا سرسار کی 1846 کو، عبدالحلیم شرر کی 1860 عیسوی کو، رسوا کی عبدالحلیم شرر کی جو ہے دوستو 1860، اور مرزا ہادی رسوا صاحب کی جو ہے 1858 عیسوی کو ہی ہے، اور منشی پریم چند کی دوستو 1880 عیسوی کو یہ ہے، اور عصمت چغتائی کی پیدائش 1915 عیسوی کو ہی ہے۔ تو میرے خیال سے جو ہے دوستو ڈپٹی نذیر احمد، اس کے بعد رتن نا سرسار، پھر دیا گیا عبدالحلیم شرر، حالانکہ عبدالحلیم شرر یہاں پہلے ہونا چاہیے، تو پھر رسوا کو پہلے ہونا چاہیے، تو مرزا ہادی رسوا کی پیدائش 1858 عیسوی کو یہاں پہلے ہونا چاہیے تھا، اور یہاں تو یہ درست ہوگا نہیں، اور یہ بھی نہیں ہوگا، اس میں یہ نذیر احمد پہلے تو یہ ہو سکتا تھا، لیکن اس میں بھی وہی دیا گیا ہے، تو اس اعتبار سے یہاں یہ ہمارا رائٹ آپشن دوسرا ہی ہوگا، لیکن یہاں پہلے جو ہے مرزا ہادی رسوا ہوں گے اور پھر بعد میں عبدالحلیم شرر ہوں گے۔ چلو جی دوستو، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کون کس کا کیا ہے، جوڑیے۔ جس ساتھ تو زمرد اور موسیٰ، ان کا آپس میں بھائی اور بہن کا رشتہ ہوتا ہے۔ موسیٰ اور یعقوب یہ جو ہے دوست ہیں۔ امام نجم الدین نیشاپوری اور حسین کا رشتہ
چچا اور بھتیجا کا بلقان خاتون اور چغتائی خان کا بیٹی اور باپ کا رشتہ، توبی خان اور منقو خان بیٹا اور باپ۔ اس اعتبار سے رائٹ آپشن تیسرا ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے کس کا کب انتقال ہوا، جوڑیے۔ یہ تو نذیر احمد کا انتقال جو ہے دوستوں 1913 عیسوی کو، پنڈت رتن ناتھ سرشار کی 1902 ہو جائے گا، اور عبدالحلیم شرر صاحب کا انتقال 1926، مرزا ہادی رسوا صاحب کا انتقال 1931، اور منشی پریم چند کی 1936، اس میں چغتائی کی 1991۔ تو اس اعتبار سے دوستوں ہمارا رائٹ آپشن ہوگا دوسرا۔ سوال نمبر 19 ہے، ذیل میں سے ناول توبۃ النصوح کے کرداروں کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، تو صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو 2 صحیح زمرہ ہو جائے گا ساتھیوں، سی اور ڈی، نصوح، کلیم، سلیم، علیم اور فہمیدہ، حمیدہ، نعیمہ، صالح، فطرت اور مرزا ظاہر در۔ سی اور ڈی والے جو زمرے ہیں وہ ناول توبۃ النصوح کے کردار ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں آپ دیکھیے گا اے اور بی میں، تو یہاں فیض علی جو ہے یہ امراؤ جان ادائی کردار ہے، تو اس اعتبار سے مرزا ظاہر دار بیگ جو ہے یہ ناول توبۃ النصوح کردار ہے، تو اس اعتبار سے ہمارا ایک غلط ہوگا۔ اسی طرح نصوح جو ہے یہ ڈپٹی نذیر احمد کا ناول توبۃ النصوح کردار ہے، لیکن امیر جان جو ہے دوستوں بسم اللہ امیر جان علی بخش، یہ کردار جو ہے آپ کے ناول فردوس بری کے ہیں، امراؤ جان ادا کے ہیں، تو اس اعتبار سے یہاں بی بھی غلط ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 20 کی طرف۔ ذیل میں سے فردوس بری کے کرداروں کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ اب یہاں پھر ناول فردوس بری کے 2 کردار کو یہاں تلاش کرنا ہے۔ جی تو حسین، زمرد، موسیٰ، حسن بن صبا، رکن الدین خرشہ، شیخ علی وجیدی، اس کے علاوہ بلغان خاتون، ہلاکو خان، منقو خان، مرجان، کاظم جنوبی اور امام نصر بن احمد۔ اے اور سی رائٹ آپشن پہلا ہو جائے گا دوستوں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں چند بیانات دیے گئے ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے، رسوا نے امریکہ کے اورینٹل یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی تھی، اور دوسرا بیان ہے دوستو، رسوا نے دارالترجمہ حیدرآباد میں بحیثیت مترجم 12 سال کام کیا تھا، اور سی میں دیا گیا مرزا رسوا شاعر بھی تھے اور ان کا تعلق دبستان دہلی سے تھا، اور ڈی میں دیا گیا ہے مرزا رسوا کا تعلق تنقید کے مارکزی دبستان سے تھا، اور ای میں دیا گیا مرزا ہادی رسوا شاعری میں مرزا تخلص کرتے تھے اور دبیر سے اصلاح لیا کرتے تھے۔ جی ساتھی تو سوال نمبر 21 کا صحیح جواب مارک کر لیجئے گا، تیسرا ہو جائے گا اے، بی اور ای، اے، بی، ای اور ہمارا رائٹ آپشن ہو جائے گا دوستوں۔ مرزا رسوا نے امریکہ کی اورینٹل یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی تھی، یہ بات درست ہے، اور رسوا نے دارالترجمہ حیدرآباد میں بحیثیت مترجم 12 سال کام کیا تھا، اور یہاں دیا گیا ہے مرزا رسوا شاعر بھی تھے اور ان کا تعلق دبستان دہلی سے تھا۔ مرزا رسوا شاعر بھی تھے اور ان کا تعلق دبستان دہلی سے نہیں تھا، لکھنؤ سے تھا، تو اس اعتبار سے ایسی غلط ہوگا۔ مرزا رسوا کا تعلق تنقید کے مرکزی دبستان سے نہیں تھا بلکہ نفسیاتی دبستان سے تھا، تو اس اعتبار سے یہاں ڈی بھی غلط ہوگا۔ مرزا ہادی رسوا شاعری میں مرزا تخلص کرتے تھے اور دبیر سے انہوں نے اصلاح لیا تھا، تو اس اعتبار سے ہمارا رائٹ آپشن اے، بی، ای ہوگا۔ سوال نمبر 22 ہے، ذیل میں درج بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے، ناول امراؤ جان ادا ایک تاریخی ناول ہے، بی میں دیا گیا ہے مانا جاتا ہے کہ امراؤ جان ادا شاہی گھرانہ سے ماخوذ ہے، سی میں دیا گیا ناول امراؤ جان ادا کا پلاٹ دوہرا ہے، اور ڈی میں ہے ناول امراؤ جان ادا کی کہانی بظاہر فلیش بیک میں چلتی ہے، اور ای میں دیا گیا ناول امراؤ جان ادا کی تکنیک بیانیہ ہے۔ یہ ساتھیو تو سوال نمبر 22 کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، بی، سی، ڈی، ای، بی، سی، ڈی، ای، یہ کو چھوڑ کر سبھی آپشن درست ہے۔ یہ بات درست ہے، امراؤ جان ادا شاہی گھرانہ سے ماخوذ ہے، اور امراؤ جان ادا کا پلاٹ دوہرا ہے، اور امراؤ جان ادا کی کہانی بظاہر فلیش بیک میں چلتی ہے، اور امراؤ جان ادا کی تکنیک بیانیہ ہے۔ تاریخی یہ ناول نہیں ہے بلکہ نفسیاتی ناول ہے، تو اس اعتبار سے یہ غلط ہوگا۔
सवाल नंबर 23 देखिएगा दोस्तों, किसने उमराव जान अदा के मौजू तवाइफ को करार देते हुए लिखा है कि ये एक रंडी की कहानी उसी की ज़बानी है। जी साथियों, तो अली अब्बास हुसैनी ने उमराव जान अदा के मौजू तवाइफ को करार देते हुए ये बात कहा था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसने उमराव जान अदा का मौजू लखनऊ का माशरती ज़वाल करार दिया है? तो याद रखिएगा खुर्शीदुल इस्लाम ने। खुर्शीदुल इस्लाम ने उमराव जान अदा का मौजू लखनऊ का माशरती ज़वाल करार दिया है। सवाल नंबर 25 है दोस्तों, झेल में से कौन बतौर शायर उमराव जान अदा में होने वाले मुशायरे में शामिल नहीं थे? तो उमराव जान अदा में होने वाले मुशायरे में शामिल जो है नहीं थे, तो वो हो जाएंगे हमारे मौलवी साहब। इसके वाला आगा साहब, शेख साहब, पंडित साहब थे। मुशायरे में शरीक होने वाले शोरा में जो है आगा साहब, कज़ाक यानी आगा और कज़ाक, और शेख साहब, पंडित साहब और ख़ान साहब थे। आगा साहब ये कज़ाक हैं यानी डाकू, और इसके अलावा जो है ये तीनों हैं मौलवी साहब को छोड़कर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नावल उमराव जान अदा के लिए हीरोइन उमराव जान क्या तखल्लुस करती है? तो नावल उमराव जान अदा के लिए हीरोइन उमराव जान का जो है तखल्लुस वो अदा करती है। अगला सवाल देखिएगा, वफ़ात के एतबार से झैल के नावल निगारों की कौन सी तरतीब दुरुस्त है? तो वफ़ात के एतबार से तीसरा सही तरतीब हो जाएगा। रतन्ना सरसार की वफ़ात 1902 ईस्वी को ये हैदराबाद में, और नज़ीर अहमद साहब की वफ़ात 1913 ईस्वी को ये है। अब्दुल हलीम शरद साहब की वफ़ात 1926 ईस्वी को ये है। रुस्वा की वफ़ात 1931 ईस्वी को, प्रेमचंद की 1936 को, और इसमत चुगताई की वफ़ात 1991 ईस्वी को। तो इस एतबार से हमारा रतन नासर साहब 1902, नज़ीर अहमद 1913, अब्दुल हलीम शरद 1926, रुस्वा 1931, प्रेमचंद 1936, इसमत चुगताई 1991। अगला सवाल देखिएगा साथियों, नावल के एतबार से सन इशाअत जोड़िए। जी तो फसान आज़ाद इशाअत के एतबार से 1880, तौबतुन्नसूह 1874, गोदान 1936, हिंदी में 1937 जामिया से शाया हुआ था। टेढ़ी लकीर 343 1945, और एक चादर मैली से 1962। राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों तीसरा। सवाल नंबर 29 है दोस्तों, झेल में से किस शेर से मिर्ज़ा रुस्वा ने नावल उमराव जान अदा का आगाज़ किया है? तो हमको भी क्या क्या मज़े की दास्तानें याद थी, लेकिन अब तमहीदे ज़िक्र दर्द व मातम हो गए। इस शेर से मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने नावल उमराव जान अदा का आगाज़ किया है। दूसरा इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 30 की तरफ। झेल में से किस शेर से नावल उमराव जान अदा में मुशायरे की इब्तदा होती है? अब यहाँ मुशायरे की इब्तदा बताना है कि तो मुशायरे की इब्तदा किसको सुनाए हाल दिल ज़ार ए अदा, आवारगी में हमने ज़माने की सैर सी की। इस शेर से उमराव जान अदा में मुशायरे की इब्तदा होती है। नावल के एतबार से सनद तसनीफ़ जोड़िए। सवाल नंबर 31 है जी, तो फिरदौसी बरी और उमराव जान अदा 1899 हो जाएगा दोस्तों। गोदान 1936 होना चाहिए था, अच्छा तसनीफ़ दिया गया है 1935, और टेढ़ी लकीर जो है 1944 हो जाएगा, 1945 में शाया हुआ है। एक चादर मैली से, तसनीफ़ लिखावट के तौर से बताना है, एक चादर मैली से 1960, और उदास नस्लें 1961। उदास नस्लें जो है 1963 ईस्वी में शाया हुआ है। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नावल है, और ये 1963 ईस्वी में शाया। इसमें 4 अदवार हैं, अबवाब हैं, सॉरी अदवार नहीं अबवाब हैं यानी फसलें हैं ये दोस्तों। तो इस एतबार से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। सवाल नंबर 32 से झेल में दर्ज नावल उमराव जान अदा का कौन सा हिस्सा किस शेर से शुरू होता है? जोड़िए। ये साथियों, तो इब्तदा आवारगी की जोश वहसत का सबब हम तो समझे हैं, मगर नासी को समझाएंगे क्या? इस शेर से दोस्तों पहला हिस्सा शुरू होता है, दे फड़कने की इजाज़त सयाद शब अव्वल की गिरफ़्तारी की। इस शेर से आपका दूसरा हिस्सा शुरू होता है, एक हाल में इंसान की बसर हो नहीं सकती, अब रंग तबीयत का बदल जाए तो अच्छा। इस शेर से आपका
तीसरा हिस्सा शुरू होता है, और हम नहीं उनमें जो पढ़ लेते हैं तोते की तरह मकतब इश्क वफ़ा तजर्बा आमोज़ नहीं। इस शेर से चौथा हिस्सा शुरू होता है, और एक शातिर चोर दिल मेरा चुरा कर ले गया, पासबां कमबख्त सब सोते के सोते रह गए। पांचवा हिस्सा इससे शुरू होता है। सवाल का सही जवाब चौथा होगा। नाविल उमराव जान अदा में नावल की हीरोइन उमराव किसकी फरमाइश पर अपनी आप बीती सुनाती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, नाविल उमराव जान अदा में नावल की हीरोइन उमराव जो है वो मुंशी साहब की फरमाइश पर अपनी आप बीती सुनाती है। मिर्ज़ा रुसवा साहब की फरमाइश पर सुनाती है या फिर मुंशी साहब? जी तो याद रखिएगा मुंशी साहब हो जाएगा। मुंशी साहब की फरमाइश पर अपनी आप बीती सुनाती है मिर्ज़ा हादी रुसवा से। अब सवाल नंबर 34 देखिएगा। नावल उमराव जान अदा की कहानी पेशी नज़र रखते हुए जुड़िए। जी तो जमींदार जो है उमराव का बाप है। दिलावर कौन होता है? तो ये उमराव को अगवा करता है, डाकू है। खानम जान ये दोस्तों एक नायिका और अमीरन को 125 रुपये में ख़रीद कर तवाइब बनाती है। और बुआ हुसैनी का जो किरदार है वो एक अधेड़ उम्र की नायिका है और उमराव की मुँह बोली माँ भी है। और मौलवी साहब जो हैं ये बुआ हुसैनी के शौहर हैं और बिस्मिल्लाह जान का आशिक होते हैं। इस सवाल का सही जवाब तीसरा हो जाएगा। सवाल नंबर 35 है दोस्तों, नावल उमराव जान अदा की कहानी जहन में रखते हुए जोड़िए। जी तो इस सवाल का सही जवाब आपका हो जाएगा पहला अली बख्श। अली बख्श ये जो है दोस्तों आपका हो जाएगा बुआ हुसैनी का भाई। बिस्मिल्लाह जान ये खानम जान की इकलौती बेटी। रामदई ये जो है सुल्तान मिर्ज़ा की बीवी है। और गौहर मिर्ज़ा ये उमराव का गुलची अव्वल और बन्नू डोमनी और नवाब सुल्तान अली ख़ान का नाजायज़ बेटा रहता है गौहर मिर्ज़ा। और नसीबन एक देहाती रंडी होती है। तो इस एतबार से राइट ऑप्शन पहला होगा साथियों। सवाल नंबर 36 देखिएगा। झेल में दर्ज नावल उमराव जान अदा का कौन सा हिस्सा किस शेर से शुरू होता है? जोड़िए। तो कुछ उनको इम्तहान वफ़ा से गर्ज न थी, एक ज़ार नातवा के सताने से काम था। ये शेर जो है दोस्तों छठा हिस्सा से शुरू होता है। इत्तफ़ाक़ात ज़माना से ये कुछ दूर नहीं, यूँ भी होता है कि बिछड़े हुए मिल जाते हैं। इस शेर से सातवां हिस्सा शुरू होता है। और देखिए पहुँचे कहाँ तक शोरश दिल का असर, सरो वहशत का यह शोला है भड़काया हुआ। इस शेर से आठवां हिस्सा शुरू होता है। और सुन चुके हाल तबाही का मेरी और सुनो अब तुम्हें कुछ मेरी तकरीर मज़ा देती है। इस शेर से नौवां हिस्सा शुरू होता है। तो इस एतबार से राइट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नावल उमराव जान अदा की कहानी को पेश नज़र रखते हुए पहचान कर जोड़िए। जी साथियों तो पीर बख्श जो है वो हो जाएगा दिलावर का दोस्त जिसने उमराव के बेचे हुए पैसे में से 50 रुपये लिए थे। फैज़ अली फैज़ू ये हो जाएगा दोस्तों उमराव को कोठे से ले उड़ने वाला एक डाकू। और करीमन ये उमराव की सहेली है। करीम ये होता है पीर बख्श का साला जिसके मकान में दिलावर ने अमीरन को अगवा करके रखा था। और अमीर जान ये मुफ्तखरुद्दौला की मुलाजमा और काज़िम अली की माशूक़ा होती है। तो इस एतबार से राइट ऑप्शन चौथा हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं सवाल नंबर 38 की तरफ। झेल में से किस नावल में शहर खलील, कोहे वजूदी, कोहे तलकान, कोहे अलबर्ज, किला तमूनत, मस्जिद शमातीन और करारम का जिक्र आया है? तो वो हो जाएगा आपका नावल फिरदौस बरी 1899 मिर्ज़ा हादी रुसवा। सवाल नंबर 29 देखिएगा। झेल में से उमराव जान अदा के किस शेर से किस हिस्से का आगाज़ होता है? जोड़िए। जी साथियों तो हर चंद बहुत गौर किया हमने शब रोज़, दुनिया का तिलिस्मात समझ में नहीं आता। इस शेर से दोस्तों 10वां हिस्सा का आगाज़ होता है। और किस तरह से हो तस्कीर शौक़
कैसा रश्क मिलेंगे आज उनसे रकीब से मिलकर। इस शेर से आपका 11वां हिस्सा शुरू होता है। हाँ ए निगाहे शौक़ मुनासिब है एहतियात, ऐसा ना हो कि बज़्म में चर्चा करे कोई। इस शेर से 12वां हिस्सा शुरू होता है। ना पूछो नाम ए अमाल की दिलावेज़ी, उम्र का किस्सा लिखा हुआ पाया। इस शेर से दोस्तों आपका 13वां हिस्सा शुरू होता है। सवाल नंबर 40 देखिएगा दोस्तों, ज़ैल में चंद बयानात दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात को निशानज़द कीजिए। जी साथियों, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा बता दीजिएगा। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था, जिसके उनके चाचा ने रखा था। तो धनपत राय उनके चाचा ने नहीं रखा था, बल्कि मुंशी प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था, लेकिन ये उनके वालिद रखे थे। तो इस एतबार से गलत बयान को निशानदेही करना है तो पहला दुरुस्त हो जाएगा। प्रेमचंद का एक दूसरा पसंदीदा नाम नवाब राय था, जो उनके वालिद ने रखा था। तो मुंशी प्रेमचंद का एक दूसरा पसंदीदा नाम नवाब राय था, लेकिन उनके वालिद ने ही चाचा ने रखा था। यहाँ वालिद ने दिया है, तो ये इस एतबार से यहाँ बी भी गलत हो जाएगा। इस एतबार से दूसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। और मुंशी प्रेमचंद ने अपने दोस्त दया नारायण निगम के मशवरे पर जो ज़माना के एडिटर थे प्रेमचंद नाम इख्तियार किया था। जी, तो मुंशी प्रेमचंद के जो है ये दुरुस्त है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने दोस्त दया नारायण निगम के मशवरे पर जो ज़माना के एडिटर थे प्रेमचंद नाम इख्तियार किया था, ये दुरुस्त है। और यहाँ दिया गया है कि मुंशी प्रेमचंद के, तो अगर दुरुस्त है तो इस एतबार से यहाँ से गलत हो जाएगा। और प्रेमचंद के वालिद का नाम मुंशी अजायब लाल था, जो एक बहुत बड़े नावल निगार थे। नहीं, इनका वालिद का नाम अजायब लाल तो था, लेकिन वो डाकखाना में क्लर्क थे। डाकखाना में जो है क्लर्क थे। तो इस एतबार से हमारा डी भी राइट हो जाएगा, क्योंकि गलत है, गलत पहचान करना है। ए बी डी, ए ये गलत हो जाएगा, ए ये भी गलत हो जाएगा, ए बी डी चौथा इसका राइट ऑप्शन है। याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ एक मामू का रोमान में नावलेट से 1901 ईस्वी में किया था। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दुरुस्त है दोस्तों कि मुंशी प्रेमचंद ने अपने अदबी ज़िंदगी का आगाज़ एक मामू का रोमान नामी नावलेट से 1901 ईस्वी में किया था। तो गलत बयान को निशानदेही करना था, तो गलत बयान ए बी डी हमारा राइट ऑप्शन चौथा होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 41 की तरफ। ज़ैल में चंद बयान दर्जों ने गौर से पढ़ी और सही बयान की निशानदेही कीजिए। यहाँ सही बयान की निशानदेही करनी है दोस्तों। जी, तो यहाँ दिया गया, प्रेमचंद ने अपना पहला नावल असरार माबिद बनारस के एक हफ्तावार रिसाला में किस्तवार शाये करना शुरू किया था, जो मुकम्मल नहीं हो पाया था। जी, क्या ये सही है? और बी में दिया गया, असरार माबिद 1905 से 1908 तक आवाज़ खलक में शाया हुआ था। सी में प्रेमचंद ने रिसाला हंस और जागरण जारी किया था। डी में प्रेमचंद ने अपनी पहली कहानी बड़ी घर की बेटी दिसंबर 1910 ईस्वी में शाया कराया था। और ई में है, जिस तरह प्रेमचंद का नावल असरार माबिद नामुकम्मल रहा था, उसी तरह आखिरी नावल मंगलसूत्र भी नामुकम्मल रहा था। ये साथी, तो इस सवाल का सही जवाब मार्क कर लीजिएगा। हमारा पहला हो जाएगा ए सी डी और ई, बी को छोड़कर बाकी सभी दुरुस्त हैं। प्रेमचंद ने अपना पहला नावल असरार माबिद बनारस के एक हफ्तावार रिसाला में किस्तवार शाया करना शुरू किया था, जो नामुकम्मल रहा था। और यहाँ दिया गया, असरार माबिद 1905 से 1908 तक आवाज़ खलक में शाया होता रहा। तो याद रखिएगा जो है असरार माबिद जो है साथियों, वो असरार माबिद जो है दोस्तों 1905 से नहीं, बल्कि 1903 से दोस्तों असरार माबिद जो है बनारस से एक हफ्तावार आवाज़ खलक में जो है दोस्तों 1903 से 1905 तक जो है शाया हुआ था, और ये मुकम्मल होने से पहले ही बंद हो गया था। तो इस एतबार से भी गलत होगा। और प्रेमचंद ने रिसाला हंस और जागरण भी जारी किया है। प्रेमचंद ने अपनी पहली कहानी बड़ी घर की बेटी दिसंबर 1910 ईस्वी में शाया करा था। जिस तरह प्रेमचंद का पहला नावल असरार माबिद नामुकम्मल रहा था, और उसी तरह उनका आखिरी नावल मंगलसूत्र है, वो भी नामुकम्मल रहा।
तो इस एतबार से पहला सही जवाब होगा। सवाल नंबर 42 देखिएगा दोस्तों, झैल में चंद बयान दिए गए, उनमें से सही बयान को पहचान कर निशान ज़ब्त कीजिए। पहला बयान है गोदान प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नावल है। दूसरा है गोदान उर्दू के बजाय पहल बनारस से हिंदी में शाया हुआ था। और सी में दिए गए गोदान में 26 अबवाब हैं। डी में है नावल गोदान का हीरो राय अग्रपाल है। और ई में है नावल गोदान के मरकज़ी किरदार हुरी के ये ख्वाहिश थी कि उसके दरवाज़े पर एक हाथी हो। जी दोस्तों, तो सवाल नंबर 42 का सही जवाब मार्क कर लीजिएगा, पहला हो जाएगा ए और बी। गोदान प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नावल, ये यहाँ एक सेकेंड, ये पहला नहीं होगा बल्कि सी डी और ई हो जाएगा। सी डी ई ऑप्शन में यहाँ नहीं दिया गया दोस्तों, ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है। गोदान मुंशी प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नावल है। गोदान उर्दू के बजाय पहल बनारस से हिंदी में शाया हुआ था। दोनों दुरुस्त हैं। गोदान में जो है टोटल 26 नहीं 36 अबवाब हैं, तो इस एतबार से सी गलत होगा। नावल गोदान का हीरो राय अग्रपाल है। तो याद रखिएगा दोस्तों, नावल गोदान का हीरो हुरी होता है, अग्रपाल नहीं है। कौन है हीरो गोदान के? तो हीरो हुरी है। तो इस एतबार से यहाँ डी भी गलत होगा। नावल गोदान के मरकज़ी किरदार हुरी की ख्वाहिश थी कि उसके दरवाज़े पर एक हाथी हो। नहीं, नावल गोदान के मरकज़ी किरदार हुरी की ख्वाहिश होती है कि उसके दरवाज़े पर एक गाय हो। यहाँ पे गाय होगा। तो इस एतबार से हमारा जो है ए बी राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला। और जी ठीक है, ये ऑप्शन दुरुस्त है बल्कि दोस्तों, ए बी राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा और सी डी ई गलत हो जाएगा। चलो जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 43 दोस्तों, गोदान की कहानी ध्यान में रखते हुए किरदारों के एतबार से रिश्ते जोड़िए। जी साथियों, तो हुरी और धनिया का आपस में शौहर बीवी का रिश्ता होता है। हुरी और गोबर का बाप और बेटे का रिश्ता है। सोना और हुरी का बड़ी बेटी और बाप का रिश्ता होता है। रूपा और हुरी का इनका आपस में छोटी बेटी और बाप का रिश्ता होता है। शोभा और हुरी का इन जो है आपस में भाई भाई का रिश्ता होता है। शोभा और हुरी। एक सेकंड, क्या ये दुरुस्त है? एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं दोस्तों, एक दफ़ा इसे फिर से देख लेते हैं, मुझे तो कुछ मिस्टेक नज़र आ रहा है। हुरी और धनिया का आपस में शौहर और बीवी का रिश्ता होता है। हुरी और गोबर बाप और बेटे होते हैं। सोना और हुरी का आपस में बड़ी बेटी और बाप का रिश्ता होता है। रूपा और हुरी का आपस में छोटी बेटी और बाप का रिश्ता होता है। शोभा और हुरी का भाई भाई ये होते हैं, शोभा और हुरी। जी दोस्तों, तो ये दुरुस्त हैं। अगला सवाल देखिएगा, गोदान की कहानी पेशे नज़र रखते हुए किरदारों के एतबार से रिश्ते शामिल कीजिए। वैसे इस सवाल का सही जवाब चौथा था दोस्तों, चौथा इसका राइट ऑप्शन था। जी साथियों, तो हीरा और हुरी का आपस में भाई भाई का रिश्ता होता है। हीरा और पनिया बेटी और बाप। झनिया और भोला इनका आपस में, एक सेकंड यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है। हीरा और हुरी का रिश्ता जो है दोस्तों भाई भाई का है। और हीरा और पनिया का आपस में जो है शौहर और बीवी का रिश्ता होता है। झनिया और भोला का बेटी और बाप का रिश्ता है। झनिया और गोबर का बीवी और शौहर का रिश्ता होता है। माता दिन और दाता दिन का आपस में बेटा और बाप का रिश्ता होता है। तो इस एतबार से हमारा राइट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा दोस्तों। सवाल नंबर 45 देखिए, गोदान की कहानी पेशे नज़र रखते हुए किरदारों के एतबार से पेशे और काम जोड़िए।
जी दोस्तों, तो दाता दीन पंडित है, मिस्टर मेहता ये फ़लसफ़ा के प्रोफेसर है, मिस मालती लेडी डॉक्टर है, श्याम बिहारी ये वकील रहता है। तो इस एतबार से राइट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। सवाल नंबर 46 है दोस्तों, गोदान की कहानी जहन में रखते हुए किरदारों के एतबार से पेशे और काम जोड़िए। जी साथियों, तो मिर्ज़ा खुर्शीद ये मज़दूरों के यूनियन का सदर होता है। मिस्टर खन्ना मिस्टर खन्ना जो है दोस्तों वो बैंक मैनेजर रहता है। मिस्टर ओंकार नाथ ये बिजली अखबार का एडिटर है। और राय अग्रपाल ये ज़मींदार होता है। तो इस एतबार से राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा। सवाल नंबर 47 दोस्तों, नावल गोदान की कहानी पेश नज़र रखते हुए किरदारों के एतबार से जोड़कर मुकम्मल कीजिए। जी साथियों, तो राम सेवक वो बूढ़ा शख्स है जिससे 200 रुपये के एवज़ रूपा की शादी हूरी कर देता है। और भोला ये एक हीर है जिससे हूरी गाय लेता है। हीरा ये वह शख्स है जिसने हूरी के गाय को जहर दिया था। और अलादीन जो है ये एक यक्का वाला होता है। तो इस एतबार से राइट ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। सवाल नंबर 48 देखिए दोस्तों, झेल में से 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही जुमरे की निशानदेही कीजिए दोस्तों। जी साथी, तो गोबिंदी, झंगरी सिंह, मंगरू शाह, अनोखे राम और सरोज ये किरदार जो है दोस्तों उमराव जान अदा के हैं। गोबिंदी, झंगरी सिंह, मंगरू शाह, अनोखे राम और सरोज उमराव जान अदा के किरदार हैं। और इसके अलावा जो है दोस्तों लाला पटेश्वरी, दुलारी पठानी, भवानी, कामता सलिया। जी नहीं, शायद मैं आपको गलत बता दिया। गोबिंदी, झंगरी सिंह, मंगरू शाह, अनोखे राम, सरोज, लाला पटेश्वरी, दुलारी पठानी, भवानी, कामता और सलिया इस तरह के किरदार जो हैं दोस्तों वो मुंशी प्रेमचंद के नावल जो है गोदान के किरदार में है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैंने आपको जो है उमराव जान अदा बता दिया था। नहीं, ये गोदान के किरदार हैं। ए और डी वाले जो ज़ुमरे हैं, गोबिंदी, झंगरी सिंह, मंगरू शाह, अनोखे राम, सरोज, लाला पटेश्वरी, दुलारी पठानी, भवानी, कामता और सलिया, ये ए और डी वाले जो ज़ुमरे हैं वो आपके गोदान के किरदार हैं। यहाँ अगर देखिएगा आप, नवाब मोहम्मद अली ख़ान, अकबर अली ख़ान, इसके अलावा जो है दोस्तों दिया गया है आपका दिलबर हुसैन। तो ये जो किरदार हैं दोस्तों जहाँ मैंने मार्क किया है, नवाब मोहम्मद अली ख़ान, अकबर अली ख़ान और दिलबर हुसैन, ये आपके उमराव जान अदा के किरदार हैं। उमराव जान अदा के किरदार हैं। और रूपा और हूरी का ये जो किरदार है जो दोस्तों, रूपा और हूरी, तो ये आपका हो जाएगा नावल गोदान। इसके अलावा यहाँ दिए गए शमशीर ख़ान, उसके अलावा जो है मखदूम बख्श, उसके अलावा जो है यहाँ प्यारे लाल दिया गया है। तो ये तीनों किरदार जो हैं आपके अगेन उमराव जान अदा के किरदार हैं। लेकिन नसू जो है ये आपका हो जाएगा नावल तौबतुन नसू, और सोना जो है ये आपका हो जाएगा गोदान। तो इस एतबार से हमारा यहाँ सी गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 49 की तरफ। झेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदेही कीजिए। पहला बयान, इस्मत के नाना मिर्ज़ा उमराव अली एक मशहूर नावल थे। दूसरा, इस्मत रूसी नावल और अफसानों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तीसरा, इस्मत जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के ड्रामों से मुतासिर थी। और डी में है ज़िद्दी इस्मत का आखिरी नावल। और ई में है कलियाँ इस्मत का पहला अफसानवी मजमुआ है। जी साथियों, तो सवाल नंबर 49 का सही जवाब दूसरा हो जाएगा, ए, सी और ई। इस्मत का नाना मिर्ज़ा उमराव अली एक मशहूर नावल थे, ये दुरुस्त है। और इस्मत जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के ड्रामों से मुतासिर थी, ये भी दुरुस्त है। और कलिया इस्मत के पहला अफसानवी मजमुआ है। ज़िद्दी जो है दोस्तों ये इस्मत चुगताई का आखिरी नहीं बल्कि पहला नावल है। तो इस एतबार से यहाँ हमारा डी गलत हो जाएगा। याद रखेंगे, ज़िद्दी इस्मत का पहला नावल है, आखिरी नहीं है। और इस्मत रूसी नावल अफसानों से बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, ये गलत है, बल्कि इस्मत चुगताई रूसी नावल और अफसानों से मुतासिर थी।
تو اس اعتبار سے یہاں بی ڈی غلط ہوگا، اے سی ای رائٹ آپشن دوسرا ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں آج کے آخری سوال کی طرف۔ سوال نمبر 50 دوستو، ذیل کے بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کو نشان زد کیجیے۔ تو ٹیڑھی لکیر عصمت چغتائی کا نفسیاتی اور سوانحی ناول ہے، یہ درست ہے۔ اس کے علاوہ ٹیڑھی لکیر کی شمن روفی ٹیلر کے بچے کی ماں بنتی ہے۔ شمن جو ہے روفی ٹیلر کے بچے کی ماں بنتی ہے۔ اور بی ای ہمارا رائٹ آپشن جو ہے دوستو پہلا درست ہو جائے گا۔ عظیم بیگ چغتائی عصمت چغتائی کے چھوٹے نہیں بڑے بھائی تھے، اور ٹیڑھی لکیر کا مرکزی کردار شمن نام کے لڑکی ہے جو اپنے والد کی پہلی نہیں بلکہ 10ویں اولاد ہوتی ہے، 10ویں ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے سی غلط ہوگا۔ اور ٹیڑھی لکیر کی ہیروئن مس چرن نہیں ہے بلکہ ٹیڑھی لکیر کی ہیروئن شمن ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے یہاں ڈی غلط ہو جائے گا۔ رائٹ آپشن آپ کا بی ای کریکٹ ہو جائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستوں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔